So in today's session, we are going to understand what are the operators in Python. Okay. So generally we are categorized into two parts. First one is unary operator and second is what binary operator. So whenever we are talking about unary operator, at that time we can say that the operator which having only one operand and one operator, that is known as what unary operator. Okay. So for an example, if I'm printing the value of a, okay, I have to save this file. So for an example, a dot py. Okay, done. Now we need to run the program. So what is going to be print? A is equal to 10 is going to print. Now what I have to do? Suppose if I am using minus 10. Okay, at that time, it is going to be print? Now see minus 10. So here minus operator working as a what? Unary operator. So we can use plus operator, but plus is not going to be shown. Okay, but you need to understand, if we are not using, if any symbol is not visible at that time, we can understand the value is what? A positive value. Okay, so now our next topic is what? Binary operators. So what are the operators are there in binary operators? So we are having different many operators. Like in binary operator we are supposed to having your arithmetic operators. So in arithmetic operator, what kind of operators are there? Okay, so like operators we have plus, okay, minus, okay, asterisk, also divide. These operators are there. Okay, then we have some more operators like floor division. Okay, I'll explain each and everything. Then we have what? Percentage symbol. So these kind of operators are there. Okay, in arithmetic operators in Python. So we will going to understand, learn one by one. Okay, so for an example, if a equal to what? 10 and b equal to what? 20. Okay, and c equals to what? A plus c equals to what? A plus b. Okay, now suppose if we are going to print the value of c, what is going to be print? Okay, so generally what? 30 will print. Okay, so generally plus, you are having idea plus. Okay, minus you also having the idea. I think I need not to explain much about this kind of operator. Okay, now see multiplication we have what? So this one, see, 200 is there. Now see next is what? Divide operator. So for division operator I'll change the value. Okay, so I'll make it what? 200. Sorry, I'll make it 5. B is what? 2. Okay, so now what? So at that time, now what output will come? It give you 2 point? Is it give you 2 to the 2.5? Is it give you 2? Is it give you 2.0? So different. Okay, so different questions are there. Okay, so let's run the program, then we will understand why it's giving this answer. Okay, so answer is 2.5. Okay, okay, so if we are using, okay, only one divide symbol is there, that it is normal division operator. Always this division operation gives you a value in the float. Okay, so suppose if I'm taking here 50 also, so answer will be 25 because no decimal is there. अरे सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप 50 को डिवाइड करोगे 20 से तो क्या होगा? 25 आंसर आएगा, लेकिन आंसर यहाँ पे 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 25.0 आएगा, 0। ओके, 25.0, सी 25.0 आ रहा है आंसर। क्यों आ रहा है? तो उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? तो उसके पीछे बेसिक रीजन है कि ये वाला जो ऑपरेटर है, कौन सा वाला ऑपरेटर? ये वाला ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर गिव्स आंसर, गिव्स आंसर इन व्हाट? फ्लोट। फ्लोट, ओके, डेसिमल पॉइंट में वैल्यू देगा आपको। ओके, क्लियर। बट सपोज इफ यू आर यूजिंग व्हाट? फ्लोट डिवीजन। if we are using what? Float division, now again it will be what? 5। then means float division में क्या होता है कि floating point के बाद वाली वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, now it gives you what? 2। okay, understand? now see 2.5 is not there, only 2 is there। okay, clear है? understand how it's coming 2? see how it's coming 2? clear now? if I am taking 25 also, then also is giving 25 only। okay, let's run the program, no problem। okay, 25, see, in the previous case 25.0, if you are using only single one, then it gives you what? 25.0। okay, if we are using what? Only single one, it gives you 25.0। ठीक, clear है? so what we can understand from here, if you are using what? if you are using
double operator. So this is known as what? Floor division. It gives you answer in what? Answer in what? Integer. Okay, integer format. Integer format. Okay. Okay. ठीक है ना? Clear. Now next. Now next, what are the operators? Now next operator is very interesting operator. See, that is mod operator, modulus. Okay. Now see, if you are dividing mod operator, especially mod operator gives you what it returns. It always returns. Sorry, it always returns what? It always returns a reminder. Okay, ये reminder return करता है. ठीक है. रिमाइंडर रिटर्न करता है तो कैसे इसको चेकेंगे कि रिमाइंडर क्या रिमाइंडर रिटर्न करता है. Okay, so we will see. Now see how it's going to be written, what kind of value will be there. So now run the program. Now see, one is coming. How one is coming? Okay, so let's move to paint. Okay, so the red symbol. Now what is the meaning of, what is the meaning of what? 5 mod 2. What is the meaning of this one? क्या मीनिंग होता है इसका? मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है? Here you will be 2, here you are 5. Okay, so 2 twos are what? 4. Okay, now what? Minus what is there? Answer. Now this is known as what? Your this is known as what? Reminder. Okay, this is known as reminder. Clear? Understand? ठीक है? Clear है? Now suppose if you are using here 5 to 5, and suppose if you are using here 4, then what answer will come? So if you are going to divide, if you are going to divide now, okay, so now the situation is different. 5 to 5 divided by mod 4. ठीक है. So 5 to 5, what? Mod 4. Now what will come? Now how we will calculate it? Simple है. कैसे calculate करना है पता है अपन को. Just use this one. 5 to 5. Now divide by 4. 4 ones are 4, minus what will come? 1. 4 threes are 12. Okay, 4 threes are 12. Okay na? So cross here also. Now 5. Okay, 5 will come here. Now 4 ones are what? 4. So remainder is what? 1. Okay, तो आंसर क्या आएगा? 1. ठीक है. See, आंसर क्या है? 1. ठीक है. Then we have one more operator. We have one more operator. This is known as what? Exponent. Okay, exponent. Power. कैसे देखेंगे? See, we have what here? 3. Here we are having what? 2. Okay, कैसे देखेंगे इसको? See, a asterisk asterisk b. A asterisk asterisk b is what? A raised to b. A to the power b. Now a is value what? 3 here, and b is value what? 2. So 3 to the power 2 means it gives you what? 9. Okay, it gives you what? 9. Okay, so we have to comment this one, otherwise it shows error. Now see 9. How 9? How 9? 9 meaning simple है. सिंपल कैसा है? 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2. 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 का मतलब क्या होता है? 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 का मतलब होता है ये 3 to the sorry 3 to the power 2. Now means what? 3 multiply 3, so it gives you what? 9. Okay, understood? So now this operator. So here your all arithmetic operators are over. Now next are what? Next what? Logical operator. Next is what? Logical. Logical operator. Okay, logical operators. Before going to learn logical operator, we need to understand what it will give you. It will give you either true, okay, or false. The basic thing you need to understand, either it gives you or false depending on the relation. Okay, sorry, I'm saying logical operator, it's relational.
Okay. Okay. Relational operator. What kind of relational operators we have? What kind of relational operators we have? So greater than we have. Okay. Then we have a less than. Then we have less than equal to. Then we have greater than equal to. Then we have not equal to. Okay. So different options are there. Now suppose if I am using here a greater than 2, what it will give you? A greater than 2, what is the value of a? 3. What is the value of b? 2. 3 greater than 2 gives you what? Means what? 3 greater than 2 मतलब कि या 3 2 से बड़ा है क्या? यस मैक्सिमम है, तो से तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा. ठीक है. Run the program. See, true. Okay. Suppose if I'll change the symbol at that time, what will give you? Again run the program, give you false. 100% false. Okay. Now suppose, ठीक, clear. Now see, if I am asking from you, now see, 3 is less than or equal to. Now what it will give you? Suppose it's 2. 2 less than equal to. Now how, what it will give you? कैसे पता चलेगा? Run the program, it gives you what? True. ठीक है. इसका evaluation कैसा होता है? इसका evaluation होता है ऐसा. ओके. इसका evaluation होता है ऐसा. क्या था? क्या था? A less than equal to B. Now see, A less than equal to what? B. Now value of A is what? 2 less than equal to what? B. To B also 2. तो इसको कैसे करें? देखो 2 लेस देन 2 ये कंडीशन बनेगा. ओके. साथ में एक और कंडीशन बनेगा यहाँ पे 2 इक्वल इक्वल टू. मैं जानबूझ के डबल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन में डबल इक्वल टू का मतलब होता है कंपैरिजन. ठीक है. कैसे? बट फॉर दिस वन इट गिव्स यू व्हाट? फॉल्स. इसके लिए फॉल्स देगा. डबल इक्वल टू के लिए क्या देगा? ट्रू देगा. और ट्रू और फॉल्स मिलकर के आंसर आएगा क्या? ट्रू. मतलब लेस देन इक्वल टू के केस में अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू आ रही है तो वो गारंटेड है 100% करेक्ट होगा. ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है. यहाँ पे लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है. ठीक. आया. Now if I am using this one, a is not equal to b means 2 is not equal to 2. 2 is not equal to 2. क्या करेक्ट है क्या? नहीं. 2 तो इक्वल टू 2 के इक्वल टू 2 है तो बिल्कुल आंसर क्या आना चाहिए? क्या 2 2 के बराबर नहीं है? बराबर है. फॉल्स आएगा. फॉल्स. ठीक. ये देखो फॉल्स आया. नाउ नेक्स्ट व्हाट? सपोज इफ आई चेंज द वैल्यू, इफ आई एम यूजिंग 5 देन 5 इज नॉट इक्वल टू 2. करेक्ट है. क्या आएगा? ट्रू. क्लियर है? ठीक है. सो these are what relational operators. Okay. Now one more thing, we have one more operator. This is known as what? Equal to operator. Equality. Okay. Equality. Equality बोलते हैं. Equality used for comparison. Okay. If I'm using double equal to means what? Equality. I am comparing for equality. Okay. Now 5 equal to मतलब क्या? 5 2 के इक्वल है क्या? है क्या? नहीं है तो आंसर आएगा false. Okay. See, false आया. ये देखो false. Sorry. Okay. Suppose if I change the value, if I am taking here 5, 5 is equal 5. Answer will come out true. See. True. Okay. Clear. So this is what your relational operator. Now after relational operator, what? That is known as logical. लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जनरली 3 होते हैं. ठीक है. एंड और नॉट. ठीक है. एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर. ठीक है. क्या होता है एंड का? मतलब क्या है? एंड इज बेसिकली डीलिंग विथ व्हेन बोथ विल ट्रू. एंड का मतलब होता है जब दोनों ट्रू होंगे. ठीक है. दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब दोनों. और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज के होते हैं दो कंडीशंस को बाइंड करने के लिए, दो रिलेशंस को बाइंड करने के लिए. ठीक है. क्लियर है? आया? सपोज आया समझ में? तो कैसे उसको देखें? चलो इसको देखते हैं. सी के लिए भी वैल्यू अब ले लेते हैं. सी इक्वल टू 6. ओके. वैल्यू चेंज कर देते हैं. 4 कर लेते हैं. ठीक है. 5 6 5 4 6. ओके. So now we are having D equal to, so we are taking what? A greater than, we are taking B. Okay. And we are using what here? And.
ओके, स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में, कैपिटल लिखोगे एरर आएगा। ओके, एंड वी हैव टू यूजिंग हियर बी लेस देन सी। ठीक है, तो इसको इवेलुएट कैसे करें, इसको इवेलुएट कैसे करें? ओके, सो सबसे पहले इसको क्या करते हैं अपन, पहले रन करने के पहले देखते हैं अपना आउटपुट करेक्ट आता है क्या। ओके ओके, सी ये है, तो इसको रन करके देखते हैं। इसको रन कैसे करें? देखो बी क्या है, बी क्या है 5 है, और 5 ग्रेटर देन बी का वैल्यू 4। ओके, ए का वैल्यू 5 था, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, और बी क्या है 4 है, और लेस देन मतलब सी मतलब क्या है 6 है। तो यहां से देखो 5 ग्रेटर देन 4 क्या आएगा आंसर, ट्रू। ओके, एंड और यहाँ पे 4 लेस देन 6 आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, और मैंने आपको एंड के लिए बताया कि जब दोनों ऑपरेंड ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब जब ये ट्रू और ये ट्रू दोनों ट्रू रहेंगे, मतलब जो यहाँ पे ट्रू है और यहाँ पे ट्रू, दोनों के बीच में, दोनों के साइड में अगर ट्रू आ रहा है, दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू है, एक्चुअल में एंड यहाँ वर्किंग एज ऑपरेटर, एंड दीज टू, दीज आर व्हाट, ऑपरेंड्स। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर बिकम्स व्हाट, ट्रू। ठीक, वी विल रन द प्रोग्राम, देन वी विल सी। Sorry, because I'm value printing the value of what C, that's why it's showing 6. If I'm printing the value of D, then it gives you what? The answer is what? True. Clear है, समझ में आया? ये देखो ट्रू आया। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? अभी सपोज एक काम करते हैं, यहाँ सिंबल चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रेटर देन। अब क्या सिनारियो होगा, अगर आपने ग्रेटर देन किया, नाउ द सिनारियो गोइंग टू चेंज। ओके, नाउ 4 इज ग्रेटर देन 6, इसके लिए तो ट्रू आएगा, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स gives you what, final answer is what, फाइनल आंसर गिव्स यू व्हाट, फॉल्स। ठीक है, आया समझ में, फॉल्स। क्लियर है, ठीक है, सो वी विल रन द प्रोग्राम, सी फॉल्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये था एंड का। ठीक है, एक और रन करके देखता है जिसमें हम लोग दोनों फॉल्स बनाते हैं जानबूझ करके। ठीक है, सी ई इक्वल टू, जैसे 5 6 से बड़ा तो है नहीं, तो क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन सी ले लेते हैं। ठीक है, और एंड ले लेते हैं, और 4 6 से छोटा नहीं है, या 5 6 से छोटा नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, सी ग्रेटर देन ए ले लेते, सी स्मॉल देन ले लेते हैं, सी स्मॉलर देन व्हाट, बी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में ये वाला बिट फॉल्स है, वो वाला भी फॉल्स है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ रख देते हैं। ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, ई वाला, यस। नाउ अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, सोचने लायक बात है, देखते हैं। ए का वैल्यू क्या है 5 ग्रेटर देन बी, सी का वैल्यू क्या है 6। ओके, यहाँ क्या लगा है, एंड लगा है, सी का वैल्यू क्या है 6, लेस देन बी का वैल्यू क्या है 4 है। वैल्यू कहाँ से आ रहा है मत पूछ लेना, यहाँ सामने लिखा हुआ है वैल्यू। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 6 कंडीशन व्हाट, फॉल्स। 5 6 से बड़ा नहीं होता, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। कौन फॉल्स देगा, ये ऑपरेटर, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये कैसा ऑपरेटर है देखो, दिस कम्स इन व्हाट, ये ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ठीक है, ठीक है, और 6 लेस देन 4 ये भी आपको क्या देगा, फॉल्स। तो फॉल्स और फॉल्स अगर आ रहा है तो वैसे ही फॉल्स है। आया समझ में? ठीक है, रन करके देखते हैं, फॉल्स आया। ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट अबाउट और, व्हाट अबाउट और का कैसा होता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू आएगा। ठीक है, दोनों का जगह क्या करते हैं, और प्लेस कर देते हैं, और कर देते हैं, और प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ प्रीवियसली मैं यहाँ पे एंड करके तो आपको आउटपुट नहीं दिखाया था, अभी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एंड, तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, ये भी फॉल्स आएगा, ये देखो फॉल्स आएगा एक और बार। ठीक, क्लियर है। अब क्या, अब और करके देखना है, और क्या काम, और का काम क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या होगा, अब और होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा, और। तो देखो अभी क्या करना है हम लोग को, पहले हम लोग इसको रन करके देखते हैं, डी वाले को। ठीक है, और मैंने क्या बोला, और के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, और के लिए देखो ऐसा कर सकते हैं, सपोज अगर ट्रू और ट्रू है, और के केस में तो आएगा ट्रू। ठीक, क्लियर है, ठीक, ट्रू
और फॉल्स है तो भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, ठीक है। अगर ट्रू, सॉरी, अगर फॉल्स और ट्रू है तो भी क्या आंसर आएगा? फॉल्स। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। लेकिन मैं और की केस की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर फॉल्स और फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है। ये टेबल याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। मैंने तरीका तो बता दिया है। जब दोनों ऑल के केस में, जब कोई में दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, सॉरी इस केस में ट्रू आएगा। ठीक है, ठीक है। तो चलो रन करके देखते हैं इसको, रन नहीं सॉरी ड्राई रन। क्या आएगा यहाँ पे? वैल्यू पुट करते हैं, 5 ग्रेटर देन 4, सो 5 ग्रेटर देन 4, बी का वैल्यू 4 है आएगा। और ठीक है, बी ग्रेटर देन 6 मतलब 4 ग्रेटर देन 6 मतलब 4 ग्रेटर देन व्हाट? 6। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या होगा? ठीक, कैसे होगा ये? अभी इस केस में इसके लिए क्या आएगा? 5 ग्रेटर देन 4 का क्या आएगा? कंडीशन ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पे और है, और 4 ग्रेटर देन 6 कंडीशन क्या? फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स देखो क्या आएगा? ट्रू। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा? ट्रू। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। और इस वाले के बारे में बात करते हैं अपन, ई वाले के बारे में। इस वाले का क्या होगा? ए ग्रेटर देन सी मतलब 5 ग्रेटर देन व्हाट? 6। और है, और सी लेस देन बी मतलब 6 लेस देन 4, बी का वैल्यू 4 है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 5 लेस देन व्हाट? सी, इसका वैल्यू फॉल्स। और 6 लेस देन 4 ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स और फॉल्स का आंसर आता है फॉल्स। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, और लगाए हैं अपन को, पहले डी की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद किसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं? ई की। तो दोनों फॉल्स आना चाहिए, दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब अपना कॉन्सेप्ट सही है अगर आया तो। ये देखो, सॉरी यहाँ पहले वाले के लिए फॉल्स, ट्रू आ रहा था ना, देखो यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, और सेकंड वाले के लिए फॉल्स। ठीक है, तो करेक्ट है अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैसे करेक्ट है देखो, एक और बार रन करके देखते हैं। यहाँ डी का वैल्यू भी ट्रू, इसका वैल्यू भी ट्रू, देखो ट्रू आया और फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब कुछ एकदम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिसको उसको पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके लिए हम लोग को दो ही वेरिएबल बहुत है। ठीक है, अब उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, शॉर्ट हैंड बोलते हैं या असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो कैसा होता है? वो होता है ऐसा, देखो, प्लस इक्वल टू, अगर मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 10, तो a प्लस इक्वल टू 10 का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है a इक्वल टू a प्लस 10। ठीक है, क्या होता है? a इक्वल टू a प्लस 10। समझ में आया? ठीक है, अगर आप लिख रहे हो a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, अगर आप ये लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? 5 लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा क्या? तो मीनिंग होगा a इक्वल टू a मल्टीप्लाई व्हाट? 5। आ रहा समझ में? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। वैसे ही प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ऐसा काम करता है। ठीक है, तो चलो रन करके देखते हैं। ठीक है, तो सी, नो सी, ए प्लस इक्वल टू व्हाट? बी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के पहले अपन ए और बी का वैल्यू प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू कॉमा, ए इक्वल टू ए, ओके, फिर कॉमा, बी इक्वल टू बी का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? और ये होने के बाद भी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी। ठीक है, अब कैसे करें इसको? तो रन करने का तरीका, रन किया जाए।
देखो ए का 5 आ रहा है, बी का 4, ए का 9 हो गया और बी का 4, ये 4 पे ही बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कैसे हो रहा है ये सब चीजें, कैसे हो रहा है, तो इसको देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, एक और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ करते हैं। हाँ, देखो ये आपका ए है। ठीक है, ये आपका ए है। ठीक है, और ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, इनिशियल में ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब आपने प्रिंट किया, जब आप प्रिंट करोगे तो ए इक्वल टू ए है और बी इक्वल टू बी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, आंसर में ए इक्वल टू क्या प्रिंट होगा, 5। यहां से वैल्यू मिलेगी उसको। ठीक है, और उसी लाइन में बी इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आया ये। नाउ ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, ये वाला आउटपुट जो आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, ये इसके कारण आ रहा है, ये वाला स्टेटमेंट के कारण, ये प्रिंट के कारण। ठीक है, अब उसके बाद ये स्टेटमेंट है ए प्लस इक्वल टू। ठीक है, अब ए प्लस इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मीनिंग है ये। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 5। बी का वैल्यू कितना है, 9। तो सॉरी, 9 नहीं, 4। तो 5 + 4 हुआ। ठीक है, क्लियर है। और वो 4 किस पे जाएगा, ये जो इसका इक्वल आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 9। और इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ए, तो ये वाला वैल्यू किस में जाएगा, ए में, और यहाँ पे ए क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 क्रॉस होगा और रिप्लेस हो जाएगा किससे, 9 से। अब अब ये स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट के कारण क्या आउटपुट आएगा, तो इस स्टेटमेंट के कारण आउटपुट आएगा आपका ये, क्या आउटपुट आएगा, ए इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या, 9, और साथ ही बी इक्वल टू, बी तो 4 का 4 ही, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आया समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, एक और बार रन करके देखते हैं। ठीक है, चलो एक और बार समझा देता हूँ, नया एग्जांपल से। ठीक, चलो। हाँ, चलो इधर जा भाई। हाँ, अब ये जो ये है, तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई इक्वल टू कर लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, कैसा होगा देखो, तो एक काम कैसा करता है देखो, अभी a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू 4 है। ठीक है, और a इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ये a इक्वल टू, a मल्टीप्लाई b, इसका मीनिंग होता है ये। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो अब फिर क्या करना पड़ेगा अपन को, ऐसे फिर बॉक्स चाहिए अपन को, तो बॉक्स बना लेते हैं, 2 बॉक्स बने। ठीक है, फिर से सारा चीज वही है, यहाँ पे क्या आएगा a, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा b। अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, a का वैल्यू वही 5। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, 4। समझ में आ रहा है, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 4। नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, a का वैल्यू क्या, 5 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4, आंसर क्या आएगा, 20। और ये 20 जाएगा किस में, ये 20 जाएगा किस में, a में। ठीक है, 20 जाएगा किस में, a में। तो 5 ये क्रॉस हुआ क्या, 20। ठीक है, और b का वैल्यू 4। ठीक है, तो ये कब हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तब a की वैल्यू चेंज बाद में हुई ना, तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा 5, ओके, और b इक्वल टू क्या आएगा, 4। ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, a का वैल्यू क्या हो गया, 5 से 10 हो गया, 20 हो गया। अब वैल्यू क्या आएगा, अब वैल्यू प्रिंट करोगे तो a का वैल्यू आएगा 20 और b का वैल्यू कितना आएगा, 4 का 4। ठीक है, रन द प्रोग्राम।
सी, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 4। आया समझ में? ठीक है, तो ये एनोटेशंस को हटा देते हैं। ठीक है।